Hello everyone. Hope you all are well and safe at home. This lockdown tied us to our home, but no need to lose hope. Here I bring for you more simple way to understand the commonly used word which in layman term is called jugaad or management. This word explains itself that is art of managing, but today we will enter in detail of its origin and history. So let's start with the basic of management. So what is management? So management, it is nothing but process of dealing with or controlling thing or people. In simple word we can say मैनेजमेंट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. ये ऐसा आर्ट है जिसमें एज अ मैनेजर आपका ड्यूटी क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करना है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. नाउ इफ वी आर talking about management, we cannot ignore the role of Henry Fayol. Okay, he was the one who had given us total 14 influential principle of management. Henry Fayol, also known as father of modern management, who had given new perception to the concept of management. Now, who was Henry Fayol? So, Henry Fayol was born in Istanbul in 1841. When he was 19, he began working as an engineer at a large mining company in France. He eventually became the director. Now, when he was director at that time, his company had employed more than 1,000 employees. While working with them, he realized that there are some principles which are lacking out, and if we are going to implement some principle into our business, simply our business will give us more and more output. So, in the year 1916, he had published his book called Administration Industrial at General, where he had explained his total 14 principle of management. So, today we will study about each and every principle in detail. So, first principle we have division of work. Now, according to Henry Fayol, the total work of an organization should be divided into smaller part, and these parts should be assigned to various employee based on their skill sets. हेनरी फ्योल का ऐसा कहना था कि किसी भी कंपनी में ओके एम्प्लॉयर को टास्क को डिवाइड करता रहना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज डिपेंड्स अपॉन दी लाइक डिसलाइक एंड कोर एरिया ऑफ द एम्प्लॉय. हमें काम को डिवाइड कर देना चाहिए. अगर एक ही एम्प्लॉय बहुत सारे काम को परफॉर्म करता है उससे क्या होता है ही विल बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. तो बेटर क्या है कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको काम को अलोकेट कर दो. अगर एक एम्प्लॉय सेम काम को बार बार करता है उससे क्या होता है आउटपुट ज्यादा आता है. वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है स्पेशलाइज हो जाता है आउटपुट ज्यादा आता है. Now, second principle was authority and responsibility. This principle says that whatever and whenever you assign a duty to a particular employee, he should also be given the required power as well. अगर एम्प्लॉय के पास पावर नहीं है तो टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा राइट. तो अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कोई भी ड्यूटीज एलोकेट करता है तो साथ में इक्वल पावर भी एम्प्लॉयज को देना चाहिए ताकि एम्प्लॉय राइट टाइम पे राइट डिसीजन को ले सके. Third, discipline. Now, according to Fear, discipline means sincerity, obedience, respect of authority, and observation of rules and regulation of the enterprise. इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एम्प्लॉय को अपने बॉस का सुपरवाइजर का रेस्पेक्ट करना चाहिए. जो भी ऑर्डर बॉस से आए उसको ओबे उसको फॉलो करना चाहिए. ओके इससे क्या होगा किसी भी एंटरप्राइज का फंक्शन स्मूथ चलेगा. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड. Employee should have only one direct supervisor. Okay, this principle says that in every company there has to be hierarchy, right? But in that hierarchy there has to be only one single boss, and that whole group should be responsible for only one head. अगर एज ए एम्प्लॉय मुझे बहुत सारे बॉस को रिपोर्ट करना है इससे क्या होगा मैं कंफ्यूज हो जाने वाली हूँ. ओके तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन खाली एक बॉस से ही आना चाहिए ओनली फ्रॉम वन हेड. नेक्स्ट, unity of direction. This principle provides that there should be only one leader and one plan, okay, for series of activities. इसका सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी कंपनी में ओके एम्प्लॉय को एक हेड के अंदर काम करना है और एक प्लान पे काम करना है. ओके यूजिंग सिंगल प्लान एंड अंडर वन मैनेजर. इससे क्या काम गेन स्मूथ होगा. अगर सेम टाइम पे एम्प्लॉय बहुत सारे प्लान पे काम करे एंड अंडर वेरियस सुपरवाइजर अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके इसमें क्या होगा आपका कोई भी टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाने वाला है. तो यहाँ का इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है कि देयर हैज टू बी वन लीडर एंड वन प्लान फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. It simply means that subordination of individual interest. It means the interest of organization is above the interest of individual and the group.
It can be achieved only when manager in high position in the organization set an example of honesty, integrity, fairness and justice. Okay, किसी भी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे नहीं होगा. प्रायोरिटी पे क्या होगा, ग्रुप का इंटरेस्ट होगा. ओके, द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन दोज ऑफ द ग्रुप. ओके, नेक्स्ट रेम्यूनरेशन. सिंपल मीनिंग होता है पे, कंपनसेशन, व्हाट वी गेट आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क और सर्विस. ओके, तो हेनरी फॉर का कहना था कि कोई भी रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अगर मुझे ड्यूटीज बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से मुझे सैलरी मिलना चाहिए. ड्यूटीज बहुत ज्यादा है और पे उसके इक्वल नहीं है तो अगेन इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा, वो अपना बेस्ट आउटपुट कंपनी में नहीं दे पाएगा. ओके, तो सिंपली मीन्स व्हाट, दैट एम्प्लॉय शुड गेट fair remuneration if they are performing any task. Next, centralization and decentralization. This principle refers to how close employees are to the decision making process. It is important to aim for appropriate balance. Now, through this slide, you must have understood what is centralization and what is decentralization. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक बॉस है, ओके, ये कमांड करता है और सारे एम्प्लॉयज को ये पावर ड्यूटीज अलोकेट करता है डिपेंड अपॉन दी टास्क. बट पूरा पावर किसके पास होगा, हेड के पास होगा. बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पूरे पावर को एम्प्लॉयर ने, मैनेजर ने डाइवर्ट कर दिया, अमंग डेलीकेट कर दिया अमंग द एम्प्लॉयज. Okay, so if the size of your firm is small, you should go with the centralization. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, that top management retain most of the power. Okay, but in case of decentralization, when the size of your firm is big, in that case you need to allocate tasks and you need to allocate duties at different level. Next, scalar chain. Now, employees should be aware of where they stand in the organization hierarchy, okay, and who is there to command them. Communication is most important aspect of any organization, and this principle deals with that only. Okay, scalar chain is that chain of supervisor that flow from top management to the lower level rank. A clear line of communication is very important for any organization to achieve its objective. The communication flow, the communication chain, it which flow from top level to lower level. Okay, so here if in this diagram, if you see that if any problem arise at D level, what happen normally, D will report to C, C will go to A, B, then B will go to A. तो अगेन इसमें क्या होगा, इट विल क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन. तो बेटर क्या है कि डायरेक्टली डी विल report to people who are there sitting at point A. Now next, order. इसका सिंपल मीनिंग होता है कि दैट राइट थिंग शुड बी केप्ट एट राइट प्लेस. ओके, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. तो अगेन इससे क्या होगा, काम अच्छा होगा. अगर कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है तो आप उसको मार्केटिंग में डाल दो. अगर किसी के पास अच्छे अच्छे आइडियाज हैं तो उसे आप प्रोडक्शन में डाल दो, आप उसे रिसर्च में डाल. अगर कोई काउंटिंग में अच्छा है या उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर अच्छा है तो उसको आप अकाउंटिंग एरिया में डाल दो. सो डिपेंड अपॉन दी टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय, यू नीड टू फिक्स देम अप. नेक्स्ट, इक्विटी. Manager should be fair to staff at all time, both maintain discipline necessary and acting all kind of action. Okay, equity means combination of fairness and kindness and justice. तो एज अ मैनेजर आपको कभी भी पार्शलिटी नहीं करना चाहिए. कोई एम्प्लॉय आपका फ्रेंड रिलेटिव है तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो वेदर ही इज योर फ्रेंड और एनमी, मे बी इफ यू डोंट लाइक हिम or her, but still you need to give them equal treatment. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनल. ना किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय व्हाट ही वांट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन दैट ही शुड हैव जॉब सिक्योरिटी. अगर मेरे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं, से क्या होगा, आई वॉन्ट बी एबल टू गिव माई बेस्ट आउटपुट बिकॉज आई नो दैट माई फ्यूचर इज नॉट हियर. But when I'm sure that my future in this company and I will be here for a longer time, so simply I will put my best effort here. Okay, तो ये प्रिंसिपल का बोलना है कि किसी भी कंपनी में ओके एम्प्लॉय का जॉब सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होना चाहिए. अगर एम्प्लॉय इनसिक्योर है, इससे क्या होगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय आपकी कंपनी से क्विट करना स्टार्ट करेंगे, इससे अगेन आपको ही लॉस होने वाला है. नेक्स्ट, इनिशिएटिव. Employees should be given the necessary level of freedom to create and carry out plan. Okay,
किसी भी कंपनी में मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए टू कम विथ न्यू आइडियाज। अगर मैनेजर अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते तो उससे क्या होता है कि देयर विल बी मोनोटोनस, ओके, एक ही आइडिया सबके पास है। बट अगर एज अ मैनेजर आई इनवाइट माई एम्प्लॉय टू कम विथ न्यू आइडिया, सो व्हाट विल हैपन, employee will come with their ideas, so there will be numerous ideas, and from that numerous ideas I can pick up the best idea, okay। तो किसी भी कंपनी में मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए सो दैट दे कैन कम विद डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। लास्ट वी हैव स्प्लिट दी क्रॉप्स का सिंपल मीनिंग होता है टीम स्पिरिट, यूनिटी। रियल टाइम तभी काम करता है जब वो ग्रुप में काम करे, कोऑर्डिनेशन रहे, ओके। एक साथ काम कर रहे हो, अगर एक साथ काम करने पे क्या होता है कि टीम वर्क होता है और काम फास्ट होता है, अकेले आप कितना आइडियाज लगाओगे। तो सिंपल मीनिंग होता है व्हाट, फीलिंग ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉयज। हार्मनी कितना है एम्प्लॉयज, कितना रिलेशन है, जेलसी नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में, एक दूसरे को हमको सपोर्ट करना है, हमको मिलके आगे बढ़ना है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी फर्म लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रोडक्शन करके दिखाता है। So I guess I'm clear with all 14 principle. Thank you. If you want to know about next topic and new topic, you can write in comment box. Simply I will work on that. Thank you.